Dear learner, in this video we will do rest of the numericals of this chapter. So let's start with the exercise question number 8, that is, an automobile vehicle has a mass of 1500 kilogram. What must be the force between the road and the vehicle if is it to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? So in this question, mass is given and negative acceleration is given. So we will fill the values of all physical quantities like mass of the vehicle m equal to 1500 kilogram, acceleration a equal to minus 1.7 meter per second square. Then by the second law of motion, that is F equal to m into a, and force equal to mass into acceleration. So put this value in the equation like 1500 into minus 1.7, then we get minus 2550 Newton minus 2550 newtons. In next question, two objects each of mass 1 kilogram are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. That will be, what will be the velocity of the combined object after collision? सो इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दोनों का मास सेम दे रखा है, दोनों की वेलोसिटी सेम दे रखी है, बट दे आर बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव की हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू 1.5 किलोग्राम, mass of second object m2 equal to same, that is 1.5 kilogram. Next, initial velocity of the first object, that is 2.5 meter per second, and initial velocity of the second object u2 equal to minus 2.5 meter per second. Why? Because it is in opposite direction. So let's combine velocity of both object equal to v meter per second. तो v हमने ले लिया, इसको लेट कर दिया, तो कि इसकी जो हमने फाइंड करनी है. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. नेक्स्ट, m1 उनकी वैल्यू पुट करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. लेकिन यहां पर a की वेलोसिटी दे रखी है उसकी, दैट इज v. सो m1 प्लस m2 इंटू v, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 इंटू v, बिकॉज बोथ हैज सेम मास. सो इनको मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3.75 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट माइनस 3.75 इक्वल टू 3 इंटू वी, यानी 1.5 प्लस 1.5 3.03v, माइनस 375 will cancel 3.75, then we get 0 equal to 3v and v equal to 0 answer. So the final velocity is 0. Now v equal to 0 is answer. Next, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second.
Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey sticks. So here mass given, mass of hockey ball m equal to 200 ग्राम. तो आपको जैसे पहले बताया था कि एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो मास का एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 200 ग्राम इन किलोग्राम बाय डिवाइडिंग इट 1000. So 200 upon 1000 kilogram, that is equal to 0.2 kilogram. Next, its velocity. Initial velocity of ball u equal to 10 meter per second. Final velocity of the ball that is equal to minus 5 meter per second. This is given because hockey ball travels in a opposite direction. जब उस पर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, इस करके this value will become in negative. So initial momentum of the ball P1 equal to m into u. तो इसकी वैल्यू को 0.2 into 10 से मल्टीप्लाई किया, then we get 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड is a unit of momentum. Next part, final momentum of the ball P2 equal to m into v. m 0.2 into v, that is negative 5. So 5 to the 10, then we get minus 1 kilogram meter per second. So change of momentum. Change of momentum means दोनों में हमने चेंज करना है mv माइनस mu. mv की वैल्यू है -1 किलोग्राम माइनस, और mu की वैल्यू है -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दैट वी गेट -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. So first of all, mass of the bullet m equal to 10 ग्राम. तो 10 ग्राम को हम फिर से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 upon 1000 that we get 0.01 kilogram. Then velocity, initial velocity u equal to 150 meter per second. Final velocity, it come at rest, so it will become 0. Time taken t equal to 0.03 seconds according to first equation of linear motion. v equal to u plus at. हमें v गिवन है, u गिवन है, a हमको फाइंड करना है और टाइम भी गिवन है. सो 0 इक्वल टू 150 प्लस a इंटू 0.03. अब इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं, इट विल बिकम 0 माइनस 150 इक्वल टू 0.03 इंटू ए माइनस 150 अपॉन 0.03 इक्वल टू ए, और ए इक्वल टू माइनस 1500 अपॉन 3, यानी माइनस 15,000 अपॉन 3. क्योंकि 0.03 था, इसके 2 प्लेस डेसिमल हटाए तो ऊपर 100 हो गया. 150 पहले था, 100 और आ गया, दैट इट बिकम 15,000 अपॉन 3. देन वी गेट माइनस 5 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. अब हमें v पता है, u पता है, इनकी वैल्यू रख करके हम s यानी डिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो 0 माइनस 150 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू s माइनस 150 अपॉन 50 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
माइनस 5 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू एस। इसकी वैल्यू रख करके हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 150 स्क्वायर मीन्स 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू माइनस 5 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। एंड जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 50 225 और साथ में इसके 2 जीरो आगे अपॉन 5 टू द 10 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻4 हो गया, यानी 4 प्लेस डेसिमल हम इसके जो है लेफ्ट साइड को ले जाएंगे। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस विल बिकम 2.25 मीटर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू a, mass into acceleration. So mass is given 0.01 into acceleration is minus 5 into 10⁻³ और इसे मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट माइनस 5 इंटू 0.01 इंटू 1000 और इसके 2 प्लेस डेसिमल यहां से हटा दिए दैट विल बिकम माइनस 50 न्यूटन और माइनस 50 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, an object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. Then they both off together in same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. So for that, first of all we write mass of the object m1। ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है, एक वुडन ब्लॉक है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड मास ऑफ ब्लॉक m2 दैट इज 5 किलोग्राम। अब इनिशियल वेलोसिटी u1 of object that is equal to 10 meter per second and initial velocity of wooden block that is at rest position, so it is 0. Before impact, total momentum. What is momentum? Momentum is the mass product of mass and velocity. तो फर्स्ट मोमेंटम m इंटू u, यहां पर ऑब्जेक्ट है m1 u1 प्लस m2 u2 क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं। सो p1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Just after impact, total momentum remains the same. So P1 equal to P2 दोनों इक्वल हो गए और उसकी वैल्यू आ गई 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। So velocity of combined object we let it that is V और P2 equal to M1 प्लस M2 इंटू V, क्योंकि इसका दोनों का कंबाइंड फॉर्म में मास आता है, दोनों को कंबाइन करना है, तो दैट इज 10 इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू वी और 10 अपॉन 6 इक्वल टू वी और 10 को 6 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट v इक्वल टू 1.66 और राउंड फिगर में 1.67 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, an object of mass 100 kilogram, this is very important question, is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. So first of all, mass of object that is 100 kilogram, initial velocity u equal to 5 meter per second, then final velocity it is 8 meter per second. So time period that is given 6 seconds. First of all we calculate initial momentum. So initial momentum m into u equal to 100 into 5, that will be 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब निकालेंगे हम फाइनल मोमेंटम दैट इज एम बी इक्वल टू
100 किलोग्राम इंटू 8, that is become 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दो आंसर तो ये हो गए, एक 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट पार्ट हमको निकालना है कि इसमें कितना फोर्स ये अप्लाई करता है, तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है। सो एक्सेलरेशन तो यहां पर हम निकालने के बजाय सीधे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर देते हैं, क्योंकि टाइम भी गिवन है, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। सो फोर्स एक्सर्टेड F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम लगा है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। सो F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है 800 यानी P2 माइनस P1 अपॉन T, ये फॉर्मूला होगा इसका। देन F इक्वल टू 800 माइनस 500 अपॉन 6 और 300 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो इसका जो आंसर आएगा वो 50 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंप बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. So mass of dumbbell that is equal to 10 kilogram, distance covered s equal to 80 centimeter. तो पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन 80 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, क्योंकि अब अभी हाथ में है, हाथ से नीचे गिरने हैं, तो जब इस अभी गिरे नहीं है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो है u एंड फाइनल वेलोसिटी तो वो हमको निकालनी है, और एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टर्मिनल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी हम इसको फाइंड करेंगे। सो मोमेंटम ऑफ द डंबल व्हेन इट इज इन दिस hits the ground that is equal to m into v, and according to the third equation of the linear motion। अब यहाँ पर हम जो है थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, that is v square minus u square equal to 2as। और अब जो है v की वैल्यू हमको निकालनी है, u की वैल्यू गिवन है 0 इक्वल टू 2 इंटू a है 10 और डिस्टेंस है 0.8, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट वी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब v की वैल्यू निकालनी है तो ये यहां से स्क्वायर हट जाएगा, तो राइट हैंड साइड पर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो v इक्वल टू रूट 16 और रूट 16 4 4 द 16, तो v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसकी फाइनल वेलोसिटी। नाउ मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर, सो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी। तो m क्या है 10, v क्या है 4, तो 10 4 द 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द